आज मिथिला चेतना संस्कृति समिति की तरफ से शनिवार को वन भोजन का आयोजन किया गया। आनंद रेसिडेंसी परागन में आयोजित इस कार्यक्रम में पूरे शिल्पांचल के मिथिला वासी मौजूद थे। इनमें संगठन के अध्यक्ष कृष्ण मोहन मेहता, उपाध्यक्ष शंभुनाथ झा, सचिव सुनील मिश्रा, मदन झा, शिवकांत मिश्रा, डॉक्टर AK झा, PR झा, आशीष भारद्वाज एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। आनंद रेसिडेंसी के प्रांगण में आयोजित इस वन भोजन में मिथिलांचल की महिलाओं ने मैथिली गीत से सभी का मन मोह लिया। कुनस्तुरिया इलाके में ECL के बसंत कॉलोनी के पीछे शनिवार की रात हुए हादसे में 54 वर्षीय खनिक मनुलाल माझी की मौत हो गई। खदान में काम करने के दौरान एक कोयला खदान के अंदर उनका एक्सीडेंट हो गया था। जब उनके सहयोगियों द्वारा मामला खदान अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने तुरंत खनिक को बचाया और उसे बांसड़ा क्षेत्र के अस्पताल ले आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से शनिवार रात खदान परिसर में हड़कंप मच गया। कुछ नहीं, उसमें सुना नहीं, कुछ नहीं, एग्रीमेंट कॉपी है उसमें मैनेजमेंट एक पढ़ के सुना ना, थोड़ा खाली सुना, ऊपर एक लाइन खाली पढ़ना है, क्या एग्रीमेंट कराए हो वो सुना नहीं रहा है। अरे बाप लिख को सुना है नहीं, एग्रीमेंट वाला तो सुना लिखे जे আমার কোনো অবজেকশন নাই, আমার ছেলেকে দেয়া হোক, মা বলছে এবারে শুনুন, আমার কথাটা শুনে নিন, কেন এটা লেখা হলো। আমার ছোট ভাইকে ওর ছেলেটার সার্ভিস বুকে নাম নাই, প্লাস লেখা হলো আর ইন ফিউচার যাতে স্যার ক্লেম না, ইন ফিউচার ক্লেম নয়, আমি এখন যে প্রোভাইড করব ওর বাবার নামটাও ঠিক নাই। হাইওয়ে ইনো করে যেটা হয়ে যাচ্ছে 22 তারিখের সেকেন্ড শিফট রাত 11টা নাগাদ মনুলাল মাঝি যে আন্ডারগ্রাউন্ডে ট্রামারের কাজে ব্যস্ত ছিল, ডিউটি করার সময় তার শরীর খারাপ হয়, শরীর খারাপ মানে চেস্ট পেন যখন হয়, অসুবিধা হয়, তাকে ওভারম্যান সুভাষ মাহান্তা নিয়ে এসে উপরে নিয়ে আসার পরে অ্যাম্বুলেন্সে হসপিটাল পাঠানো হয়েছিল, বাঁশরা হসপিটাল নিয়ে যাওয়ার পরে ওখানেও মারা যায়। আজকে কি আপনার আজকে কালকে রাত্রেবেলায় আমরা সবাই হসপিটালে এসেছিল, আমি ম্যানেজার এবং এখানকার নেতৃবর্গ সবাই ওখানে পৌঁছেছিলেন। আজকে ওর মনুলাল মাঝির ডিপেন্ডেন্টকে চাকরির দাবিতে এবং ওর কম্পেনসেশনের দাবিতে একটা এগ্রিমেন্ট সাইন করার জন্য সমস্ত লোক এখানে হাজির হয়েছে, ইউনিয়নের প্রতিনিধি, এরিয়া পার্সোনাল ম্যানেজার এবং আমার অফিসে। এখন একটা এগ্রিমেন্ট সাইন হওয়ার পরে তারপরে ডেড বডি নিয়ে যাওয়া হবে। এগ্রিমেন্টের জন্য মোটামুটি সবাই রাজি হয়ে গেছে। এগ্রিমেন্ট হিসাবে ওর ছোট ছেলেকে প্রফেশনাল এমপ্লয়মেন্ট দেওয়া হচ্ছে
আর বাকি যা অ্যাজ পার রুল যা যা কম্পেনসেশন পাবে সেগুলো পরে দেওয়া হবে আফটার সাবমিশন অফ ক্লেম। আপনার পরিচয়টা দেবেন? হ্যাঁ, আপনার পরিচয়টা দেবেন? আমি অসীম কুমার সালুই, एजेंट मासरापल्ली। आसनसोल नगर निगम के भाजपा प्रत्याशी वृग्गू ठाकुर पर भाजपा कार्यकर्ता से मिलने के दौरान हमला किया गया। ये घटना आसनसोल दक्षिण थाने के सुकांत मैदान इलाके की है। इसके विरोध में आसनसोल दक्षिण पुलिस थाने में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। इस घटना के बाद भाजपा प्रत्याशी वृग्गू ठाकुर ने आसनसोल दक्षिण थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। खबर मिलने के बाद भाजपा प्रदेश समिति के सदस्य कृष्ण नंदू मुखर्जी आसनसोल दक्षिण थाने पहुंचे। हालांकि तृणमूल नेता अमरनाथ चटर्जी ने आरोपों से इनकार किया है। यहाँ लगा हाँ, जो कि हम फेस को गार्ड किए बोल के मुंह नहीं तो मुंह अभी फटा हुआ रहता। कहाँ पे मारा? और ये चश्मा वश्मा सब गिर गया था, इधर खून नहीं निकला है लेकिन मारा। मोबाइल गिर गया था। मोबाइल फिर एक लड़का राजा बोल के लड़का वो मोबाइल उठा करके दिया। হ্যাঁ ভিগুদা কি এইদিকে দেখো, এইদিকে কি হলো কি আপনার সঙ্গে? আমি যাচ্ছিলাম, আমার একটা কর্মী কৈলাস সাউ তার ব্লাড প্রেশার হাই হয়ে ও পড়ে গেছিলো। খবর পেয়েছি, আমি ওই যাচ্ছিলাম ওকে দেখা করার জন্য। সেই দেখার চক্রান্তে যে সুকান্ত ময়দান যে গলিটায় বড় অফিসে যে ঢুকছে সেইখানে 20টার মতনই ছেলে হবে। তার মধ্যে ছেলেরা কিছু নেশা করেছিল, ড্রাই নেশা যাকে বলা যায় সেই নেশা করে আমাকে আগে প্রথমে গাল দিলাম তো ভাই গানে গানে বিজেপি কা মানে আমার পার্টির সম্বন্ধেও অনেক কিছু বললো। আর তারপরে আমার মায়ের নিয়ে আর নানা রকমের মানে গালিগালাজ দিল। আমি আপত্তি করতে গিয়ে আমার উপরে একজন আমাকে ধরে নিয়েছে আর একটা ছেলে মারতে আরম্ভ করছে, আর 2-3টে ছেলে শুধু মানে দেখছে সিনটাকে দেখছে কীভাবে মানে ওরা মানে সাপোর্ট হয়। যদি আমার পক্ষে যদি কোনো ছেলে আসতো 2-4টা তাহলে ওরা ওর জন্য তৈরি ছিল, কিন্তু আমি একা ছিল, এই জন্যে ওরা দুজনেই মিলেই ইয়ে করেছে। এরা কারা আছে? এরা অপোজিশন পার্টির ছেলে আছে। যখন আমার বিজেপিকে নিয়ে গাল দিয়েছে তাহলে নিশ্চয়ই ওরা তৃণমূলের আছে। হ্যাঁ, অস্ত্র দিনে হাত দিয়ে ফাইটাফাইটি হয়েছে। আমার তো মুখটা এখন ফেটে যেত, আমি যেহেতু গার্ড করেছি বলে বেঁচে গেছি মুখটা। থানায় অভিযোগ করেছেন? হ্যাঁ, থানায় এখনই অভিযোগ করেছি। বড়বাবু বলেছেন কি আমরা তাড়াতাড়ি অ্যাকশন নিচ্ছি, যে ছেলেটা মেরেছে তাকে আমরা খুঁজে বের করে অ্যারেস্ট করছি। কোনো নাম দিয়ে অভিযোগ? হ্যাঁ, নাম দিয়েছি। একটা নাম ফাইজাল বলে আছে, কী জানি নাম, ওর কাল্পনিক নাম আছে না, ওরা ওইভাবে ডাকছিল বলে আমি নামটা শুনেছি। এই ফাইজাল, এই ফাইজাল, এই ফাইজাল, এ হাম লোক চেঁচা লাগতা মাতি মানে হতে পারে ওরা নাটকবাজি করছে। আপনি তো প্রার্থী, তারপরে হ্যাঁ কেন? প্রার্থী আছি, নিশ্চয়ই প্রার্থী আছি। ওই ওয়ার্ডের উইনিং ক্যান্ডিডেটও, হ্যাঁ ওই ওয়ার্ডেই আমি লড়াই করছি। আর ছেলেটা বোধহয় ওই ওয়ার্ডেরই আছে, ফাইজাল বলে। আপনার নাম? ভিগু ঠাকুর। প্রার্থীকে মারা হয়েছে এইমাত্র আমরা জানতে পারলাম যে ওখানের কিছু মানুষজন, ও একা যখন যাচ্ছিল সেই সময় ওকে একা পেয়ে ওখানে কি হামলা হয়েছে। ঠিক আছে, আমরা এসেছিলাম থানাতে, আমরা থানাতে আইসির সঙ্গে দেখা করলাম। আইসি আমাদের আশ্বস্ত করেছে যে কাল 12টার মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমরা কাল 12টার সময় আবার আসবো, আমরা আইসিকে বলে গেলাম। প্রশাসনের সঙ্গে আমরা সহযোগিতা করে চলছি এবং আমার ক্যান্ডিডেট একদম মানে নিরীহ ক্যান্ডিডেট। ভিগু ঠাকুর সম্বন্ধে আসানসোলের প্রত্যেকটা মানুষ জানে কেমন মানুষ, সাধারণ অতি সাধারণ মানুষ, গিয়ে প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজ করে। এইরকম একটা মানুষকে একা পেয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে। আমরা এটা তীব্র নিন্দা ধিক্কার জানাচ্ছি এবং কাল 12টা অবধি আমরা দেখছি প্রশাসন কি সহযোগিতা নেয়। প্রশাসনের উপর আমাদের আস্থা আছে, আমরা জানি প্রশাসন নিশ্চয়ই কিছু ঠিকঠাক ব্যবস্থা নেবে, নাহলে আদারওয়াইজ আমরা এটা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। আমাদের ক্যান্ডিডেটের গায়ে হাত পড়েছে, এটার জন্য যা যা করণীয় আমরা সব করব। আর কালকে আমরা 12টা অবধি সময় নিচ্ছি, আমরা দেখছি, আইসির সঙ্গে কথা হয়েছে আমাদের, আমরা কালকে 12টার পর সিদ্ধান্ত নেব। ইলেকশন আসছে, সবাই নিজের নিজের টিআরপি বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করছে। তো এই টিআরপি বাড়িয়ে তো কোনো লাভ হবে না। তৃণমূলের লোকেদের এত নেই, সময় নেই
নির্বাচনের সময় তারা প্রচার ছেড়ে এই সমস্ত করবে। কালকে নেতাজির জন্মদিন আছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছে 125 বছরের জন্মদিন পালন করার জন্য তৃণমূলের ছেলেরা সেই সব দিকে মেতে আছে। তো তৃণমূলের ছেলেরা এসব করে না, গুন্ডাগার্দি এই সমস্ত মিথ্যে অভিযোগ এনে নিজেরা প্রচার করতে পারছে না। নিজেরা 5 বছর কোনো কাজ করেনি, লুকিয়ে বেরিয়ে ছিল। নিজেদের গাফিলতিগুলোকে ঢাকার জন্য এই সমস্তভাবে নিজেদের প্রচারে আনার চেষ্টা করছে। बराकर के कई स्थानों पर धूमधाम से मनाया गया नेताजी की जन्म जयंती। पश्चिम बंगाल सरकार युवा कल्याण एवं क्रीड़ा विभाग द्वारा आयोजित देश के नायक बंगलार वीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सुभाष उत्सव का आयोजन बेगुनिया चेक पोस्ट स्थित पोथेर साथी हॉल में आयोजित किया गया। इस दौरान महिला उन्नयन समिति तथा नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन के पश्चिम शाखा के छात्र छात्राओं ने सर्वप्रथम इलाके में प्रभात फेरी बेगुनिया बस स्टैंड से निकाली गई। कार्यक्रम में सर्वप्रथम जीप के यूथ अधिकारी प्रबल मंडल संजीव दास, बराकर पुलिस फाड़ी प्रभारी शीतल नाग, नेशनल एडवेंचर पश्चिम चैप्टर के अध्यक्ष मीर मंडल अजय प्रताप सिंह ने सर्वप्रथम नेताजी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करते हुए नेताजी को याद किया तथा छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। आज क्या प्रोग्राम हुआ आप लोग का? आज यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ, जिसके अंतर्गत हम लोग सब मिलके पहले रैली में गए। उसके बाद कुछ बच्चों ने यहाँ डांस भी किया, ड्राइंग कंपटीशन भी हो रहा है। हम सब महिला लोग मिलके उनके जन्मदिन पर गाना भी गाए हैं। और इस सब एनसीसी के बच्चे लोग ने बहुत अच्छे से परेड भी किया। उन सब ने हम लोगों के साथ बहुत सहयोगिता किया। किन संस्था द्वारा किया जा रहा है? हाँ, किन संस्था द्वारा ये किया जा रहा है? पश्चिम कल्याण और क्रीड़ा दफ्तर के आयोजन से ये किया जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक रैली निकली थी आपकी? यहाँ से हम लोग पतेसाती से निकल के हम लोग बस स्टैंड वहाँ तक के बच्चे छोटे छोटे बच्चे लोग आए, उसके साथ रैली निकाली बेगुनिया बड़ा कर। हाँ, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती के अवसर पर शिल्पांचल के विशिष्ट हस्तियों द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया जा रहा है। इसी क्रम में रानीगंज के विधायक और एडीडीए चेयरमैन तापस बैनर्जी ने रानीगंज के राजबाड़ी स्थित विधायक कार्यालय में तिरंगा लहराया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धा सुमन अर्पित की। इसके उपरांत वो रानीगंज के नेताजी मोड़ इलाके में पहुंचे, जहां 91 नंबर वार्ड की टीएमसी प्रत्याशी राजू सिंह सहित स्थानीय तमाम तृणमूल कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। यहां भी तापस बैनर्जी ने तिरंगा फहराया और उनके नेतृत्व में राजू सिंह सहित उपस्थित सभी ने नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस मौके पर रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक नाम ही नहीं, बल्कि वो एक सोच है जो हम सभी में देशभक्ति और कभी हार न मानने के जज्बे को जगाते हैं। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आज़ादी के लिए कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हौसला नहीं हारा, क्योंकि उनको विश्वास था कि अगर समूचा देश एकजुट हो जाए तो देश को आज़ादी जरूर हासिल हो सकती है। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस न सिर्फ एक सोच देशभक्त है, बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक थे। उनके द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज में हर जाति हर मजहब के लोग थे, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में सिर्फ एक ही लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे थे, वो है देश की आज़ादी। उन्होंने सभी से, खासकर नई पीढ़ी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों पर चलते हुए अपने जीवन को देश और समाज के कार्यों में संलिप्त करने का आह्वान किया। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। जी हाँ, मैं हूँ जाहिद अनवर और आप देख रहे हैं आंसरसुल टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रानीगंज के नेताजी मोड़ के पास और हमारे पीछे आप साफ तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की यहाँ पे एक मूर्ति है, जो कई संस्था, कई पॉलिटिकल, कई आम इंसान भी यहाँ पे आ रहे हैं आस्था से और यहाँ पे उनके मूर्ति पे माला अर्पण कर रहे हैं। मैं बताता चलूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वां जन्मदिन को मनाया जा रहा है। मैं उसी महापुरुष की बात कर रहा हूँ जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जी हाँ,
इसी हस्ती को आज सेलिब्रेट करने के लिए कई नेता, तो कई सोशल वर्क, तो कई संस्था, कई आम इंसान भी यहाँ पहुँचे हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी इस 125वां जन्मदिन के मौके पे क्या कार्यक्रम की जा रही है और यहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम किया जाएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। आसानसोल टाइम्स न्यूज़, मैं जाहिद अनवर। তো আমরা রানীগঞ্জ শহরে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের সমস্ত জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে পতাকা উত্তোলন। আপনারা জানেন যে যেইটা শহরের প্রাণকেন্দ্র নেতাজি, এখানে আবক্ষ একটি মূর্তি আছে। এখানে যারা কমিটি আছে তারা এই দিনটি শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করলো। আজকে এখানে পতাকা উত্তোলন, নেতাজি গলায় মাল্যদান, বাচ্চাদের মিষ্টি মুখের মাধ্যমে আজকে এই দিনটা পালন করছি। বিভিন্ন জায়গায় রক্তদান অনুষ্ঠান হচ্ছে, কোথাও কিছু জায়গায় বাচ্চাদের মধ্যে খেলাধুলার, বাচ্চাদের মধ্যে পড়াশোনার কি সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে। এইভাবেই তার দিনটাকে আমরা স্মরণ করতে চাইছি। নেতাজি শৌর্যের প্রতীক, নেতাজি দেশপ্রেমের প্রতীক, নেতাজি দেশভক্তির প্রতীক। তাই আজকে যদি তার পথকে আমরা অনুসরণ করতে পারি তবেই ভারতবর্ষ আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন হবে। তাই আমার সবারই প্রতি আহ্বান যে নেতাজির যে ত্যাগ, নেতাজির যে ভারতবর্ষের প্রতি ভালোবাসা, দেশের প্রতি যে ভালোবাসা, সর্বধর্ম সমন্বয়, সেই পথকে যেন আমরা নিজের মতো করে করতে পারি। আজকের দিনে সকলকে আমি আমার পক্ষ থেকে, আমার দলের পক্ষ থেকে সকলকে আজকের দিনটা আমরা অভিনন্দন জানাই। देश के महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश के साथ साथ शिल्पांचल में भी नेताजी को याद किया जा रहा है। इसी क्रम में रानीगंज के एनएसपी रोड इलाके में सुभाष स्वदेश भावना नामक संस्था की तरफ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर संगठन के कर्णधार गोपाल आचार्य ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर संगठन की तरफ से गरीब जरूरतमंदों में कंबल वितरण किए गए। कार्यक्रम के दौरान अपना वक्तव्य रखते हुए गोपाल आचार्य ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन हम सब के लिए प्रेरणादायी है। नेताजी ने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में निछावर कर दिया। उन्होंने देश की आजादी के लिए तमाम मुश्किलों का सामना की, लेकिन वो देश की आजादी के लिए संघर्ष करते रहे। ये नेताजी ही थे जिन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए देश की आजादी जिंदगी से भी बड़ी थी। गोपाल आचार्य ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ही आज संस्था की तरफ से गरीब जरूरतमंदों में कंबल वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वामी सुब्रतनंद जी महाराज, निर्मल चैटर्जी सहित संस्था के तमाम पदाधिकारी और सदस्यगण उपस्थित थे। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। দ্বিতীয় বিবেকানন্দ নেতাজি হয়ে এসেছিলেন। এই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, লতিকা ঘোষ তাকে নিয়ে একটা রেজিমেন্ট করেছিলেন কলকাতাতে, কি না করেননি। তাদের সঙ্গে পারমিশন নিয়ে তারা স্বয়ং তো বলেছিলেন যে স্বামীজির সঙ্গে। আজকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর 125তম জন্মজয়ন্তী, সেই উপলক্ষে সুভাষ স্বদেশ ভাবনার পক্ষ থেকে জন্মজয়ন্তী পালন করা হয় বিভিন্ন সমারোহে। এবং এই বছর সারা বছর আমাদের সুভাষচন্দ্র বসুর আদর্শকে সামনে রেখে যুব সমাজের কাছে সারা বছর ধরে কাজ চলবে। বিভিন্ন রকমের অঙ্কন প্রতিযোগিতা আছে, সাহিত্য আছে, খেলাধুলা আছে, সারা বছর ধরে আমরা প্রোগ্রাম নেব। আমাদের সুভাষ স্বদেশ ভবনের যারা আজ সমস্ত সদস্য যারা উপস্থিত হয়েছে, নির্মল থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ, সুরজ, দীপক পণ্ডিত থেকে শুরু করে চন্দন থেকে শুরু করে আরও যারা সবাই টিঙ্কু রয়েছে, প্রত্যেকে যারা রয়েছে তাদেরকে आज 200 आदमी को कंबल वितरण किया गया और अगला जरूरत पड़ेगा तो आगे भी करा जाएगा। साथ साथ इस संस्था में क्या-क्या एक्टिविटी रही है इस साल का? बोल रहा था सारा साल सुभाष चंद्र बोस का जो युवा शक्ति का जो उसका आदर्श है, तो युवकों को लेके देश को आगे बढ़ाना है। उसको काम जैसे बेकार दरिद्र जो होता है, जो अनएम्प्लॉयड है, उनको कैसे उसका कर्म संस्थान का दिशा देखा जाएगा, यही सुभाष चंद्र भावना का मूल उद्देश्य है। गोपाल चंद्र आचार्य जी, मैं इस संस्था का सभापति हूँ। आज नेताजी की 125वीं जयंती के मौके पर पूरे देश के साथ साथ शिल्पांचल के तमाम क्षेत्र में भी नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इसी क्रम में रानीगंज के नेताजी मोड़ इलाके में रानीगंज टाउन टीएमसी अध्यक्ष और 37 नंबर वार्ड के टीएमसी प्रत्याशी रुपेश यादव के नेतृत्व में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर रानीगंज क्षेत्र के तमाम टीएमसी प्रत्याशी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान रुपेश यादव ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हम सब के लिए एक प्रेरणा थे। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया।
इतना ही नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक सच्चे देशभक्त के साथ साथ बहुत अच्छे संगठक भी थे। उन्हीं की बदौलत आज़ाद हिंद फौज जैसी एक शक्ति का निर्माण हो सका। उन्होंने नई पीढ़ी से भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों पर चलकर देश और समाज के लिए मर मिटने का आह्वान किया। देश नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 175वीं जन्म दिवस है। उन्होंने सिखलाया था कि अन्याय के खिलाफ किस तरह लड़ाई है। आज उनके जन्म दिवस के ऊपर में उनको माल्यार्पण करके उनके जन्म दिवस का उद्यापन आज हम लोगों ने किया है और उनसे ये प्रेरणा लिया है कि रानीगंज शहर को चाहे जिस भी परिस्थिति में हो शिखर तक पहुंचाना है। मैंने कहा ना कि उनसे प्रेरणा लेते हुए यही कहा है कि रानीगंज शहर को इस ज़िले में शिखर तक पहुंचाना है। रानीगंज शहर इस ज़िले के नंबर 1 शहर में आने वाला दिन में रहेगा। आसनसोल नगर निगम के 92 नंबर वार्ड की भाजपा प्रत्याशी सुनीता कयाल ने आज रानीगंज के नेताजी मोड़ इलाके में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर उनके साथ स्थानीय कई भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। सुनीता कयाल ने कहा कि आज़ादी के बाद से जितनी भी सरकारें इस देश में आई, सभी ने आज़ादी की लड़ाई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान की अवहेलना की है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा कर उनके प्रति सच्ची श्रद्धा का प्रदर्शन किया है। सुनीता कयाल ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे चरित्र इतिहास में विरले होते हैं जो देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। हम लोग सबसे पहले तो कोविड हमारे देश में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो हम लोगों में मास्क और सैनिटाइजर वितरित करेंगे, जिससे वो उनको जानकारी दें कि कोविड बहुत ही खतरनाक है और वो मास्क और यूज़ करें और अपनी जान के साथ लोगों की जान की भी सुरक्षा करें। इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ मैसेज देना चाहते हैं बंगाल के लोगों को? ये बहुत बड़े महानायक हैं हमारे देश के, जिसकी वजह से हमारे देश में आज़ादी पाई थी और इनको आज के दिवस पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं सभी युवाओं से अपील करूँगी कि उनके जीवन से सीखें और जो आज गलत राहों में आ गए हैं वो नेताजी के जीवन से सीख लेकर सही राह पर चले और देश को और हमारे बंगाल का उत्थान करें। आपका नाम परिचय? सुनीता कयाल, 92 नंबर वार्ड, बीजेपी प्रवक्ता। औद्योगिक शहर रानीगंज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर देश के महान क्रांतिकारी को श्रद्धांजलि देने का दौर जारी रहा। रानीगंज के नेताजी मोड़ इलाके में रानीगंज के तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष इंतखाब खान के नेतृत्व में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया गया। रानीगंज तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष इंतखाब खान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके उपरांत इंतखाब खान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और हम सबको उनके आदर्शों पर चलते हुए देश और देश के लोगों की सेवा करनी चाहिए। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। आज हम लोगों ने नेताजी स्टेचू पर आकर माल्यार्पण किया है। यह हमारे देश के बहुत ही बहादुर और एक आज़ादी की लड़ाई में सबसे महान सैनिक थे। इनको आज सब देश बहुत ही शान से मनाया जा रहा है। आज हम लोग कोविड को देखते हुए हर जगह इनका एक बड़ा प्रोग्राम होता है, पर कोविड को देखते हुए आज हम लोगों ने बहुत सा प्रोग्राम कैंसिल किया है। पर लोगों के बीच में जो भी आपका नाम परिचय? इंतखाब खान, रानीगंज ब्लॉक प्रमुख, तृणमूल कांग्रेस, माननीय सेल। किस्मत कब किस करवट बदल ले ये कोई नहीं कह सकता। ऐसा ही कुछ हुआ रानीगंज के नीमचा कोलेरी अंतर्गत पठान धौड़ा के रहने वाले मुमताज खान के साथ। मुमताज खान पिछले 12 सालों से अलाउद्दीन खान नामक एक व्यक्ति के लिए डंपर चलाते हैं। अपनी बदहाल आर्थिक स्थिति को सुधारने की आस में वो अक्सर लॉटरी के टिकट काटा करते थे, लेकिन कभी किस्मत उन पर मेहरबान नहीं हुई। लेकिन आज ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और आज दोपहर जब उन्होंने टिकट काटा तो उनको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। जब उनको ये समाचार मिला तो खुशी के साथ साथ उनके मन में डर भी बैठ गया। मुमताज खान ने अलाउद्दीन खान को इस बारे में जानकारी दी और कहा कि 1 करोड़ की लॉटरी लग जाने से अब उनको काफ़ी डर भी लग रहा है।
ये सुनकर मुमताज़ खान ने रानीगंज के पंजाबी मोड़ फाड़ी से संपर्क किया और फाड़ी के अधिकारियों ने मुमताज़ खान से संपर्क कर उनको थाने ले आए और उनको अपनी हिफाजत में रखा। इस संदर्भ में मुमताज़ खान का कहना है कि वो पिछले 12 सालों से डंपर चालक का काम कर रहे हैं और वो अक्सर लॉटरी के टिकट काटा करते थे, लेकिन आज ऊपर वाला उन पर मेहरबान हुआ और उनको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। लेकिन वो काफ़ी डर गए और उन्होंने अपने मालिक अलाउद्दीन खान को इसकी इत्तला दी। अलाउद्दीन खान ने रानीगंज के पंजाबी मोड़ फाड़ी के अधिकारियों से संपर्क किया और वो उन्हें थाने लेकर आए। वहीं अलाउद्दीन खान ने मुमताज़ खान के लॉटरी जीतने पर खुशी जताई और कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी और इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और वो अपने परिवार को एक बेहतर ज़िंदगी दे पाएंगे। वहीं मुमताज़ खान ने जब हमने पूछा कि वो लॉटरी की रकम का क्या करेंगे तो उन्होंने कहा कि वो अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे और एक घर बनाएंगे। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भले उनको लॉटरी लगी है लेकिन वो आज भी तकदीर से ज़्यादा तदबीर पर भरोसा करते हैं और जैसे पहले डंपर चालक का काम किया करते थे इसके बाद भी वो करते रहेंगे। रानीगंज से जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? मुमताज़ खान। आज क्या हुआ लॉटरी में तुम्हारा? लॉटरी लिए थे 1 बजे का, तो गाड़ी चला के आए, लॉटरी मिलाए तो देखे लॉटरी पड़ा 1 करोड़। तो हमने मालिक को फ़ोन किया अलाउद्दीन खान को कि भाई ऐसा बात है, लॉटरी मिला है, आप आइए, हमको डर लग रहा है, तो इंसान ले जाए तो दिक्कत करेगा। कहाँ पे मिला था, किस क्षेत्र में आपका मतलब? हमने रानी से टिकट लिए थे, रानी से मोड़ पेट्रोल पंप। काम क्या करता है? डंपर चलाते हैं। कितना सालों से चला रहे हैं? 12 साल से मालिक का चला रहे हैं, मालिक अलाउद्दीन खान के। कितना सालों से? 12 साल। बढ़िया मालिक है, इसलिए 12 साल चला। आज लॉटरी उड़ने के बाद क्या लग रहा है आपको? लॉटरी मिलने के बाद अच्छा लग रहा है हम लोग कि मैं जो गरीबी था सब दूर हट गया है ना। बड़ा बच्चे का कुछ मैंने अच्छा परिवार के लिए क्या सोचे हैं? जो घर बनाएंगे, बेटे के नाम पर रखेंगे, कुछ बेटा के नाम पर, बेटे के नाम पर, अपने नाम पर, जो पैसा घर पर बना कर रखेंगे और जो गाड़ी चला रहे हैं गाड़ी चलाते हैं। अपना जो काम करते रहे वही करेंगे। वही काम करेंगे, जो गाड़ी चला रहे हैं वही काम करेंगे। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुमताज़ बड़ी 1 करोड़ लॉटरी लगने के बाद आपको क्या इन्फॉर्मेशन दिया? मेरे को मेरा ड्राइवर फ़ोन किया 5 से 6 के बीच में कि भैया मेरा लॉटरी लगा है, मेरे को डर लग रहा। मैंने यहाँ के उज्जवल बाबू को फ़ोन किया। उज्जवल बाबू सर एक ऑफिसर को भेजे श्याम सेल के अंदर से। ड्राइवर को साथ में हम लेके आए हैं, सर के साथ बड़ा बाबू को लेके गए। बड़ा बाबू आप लोग को बुलाए हैं, बड़ा बाबू सहयोग कर रहे हैं। ये सर हमारे साथ में गए थे। कितने सालों से वो काम कर रहे थे आपके पास? 10-12 साल से सर काम कर रहे हैं। सर 2 मिनट। क्या हालात था उनका? उनका घर का सर बहुत ख़राब हालत था। 3-4 गो बच्चा है। बहुत खुशी हुआ ये लॉटरी पड़ा हम लोग को। अच्छा, क्या वो लॉटरी पैसा मिलने के बाद आपके पास जॉब करेगा ये? तो सर वो तो उसके ऊपर में है, अब हम कैसे बता दें वो करेगा कि नहीं। आपको कितना खुशी महसूस हो रहा है? बहुत खुश हो रहे हैं सर कि चलो किसी का तो कुछ अच्छा हुआ। हम सर बहुत खुश हैं। आपका ड्राइवर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अलाउद्दीन खान। घर? मोहम्मद लीना को लिए